Jai Hind all my dear students, how are you all? So today we are moving to the next topic of this chapter, that is transportation in human beings. We have seen in previous sections that blood transport food, oxygen and waste materials in our bodies. Even in class 9 we have learned about blood being a fluid connective tissue, right? Blood being a fluid connective tissue. It consists of a fluid medium called the plasma, right? So it consists of this medium, and in which cells are suspended, so the plasma, what the plasma will do, the plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Clear? Oxygen is carried by RBCs, right? The oxygen is carried by our RBCs. Apart from it, many other substances like salts are also transported by the blood. So what we need? We need a pumping organ to push blood around a body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure this network can be repaired if damaged. So in this topic we are going to learn about the human heart. Yes, so our topic is human heart. So our pump, right, the heart. So it is a muscular organ which is as big as our fist, right? It is a muscular organ which is as big as our fist. जैसे हमारा हाथ का साइज हो गया, ठीक है, जैसे हमारा हाथ का साइज हो गया वैसे ही क्या होगा आपका, क्या होगा, ह्यूमन हार्ट, राइट? Both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. So both oxygen and carbon dioxide, they have to be transported by the blood, right? The heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So our heart is having different chambers. So in human heart total we are having 4 chambers, right? So total we are having the 4 chambers. I will show in the diagram. Okay, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So there is no mixing between oxygen rich blood, right, with the deoxygenated blood. Carbon dioxide rich blood has to reach the lungs, right? So the carbon dioxide blood rich blood has to reach the lungs, right, for the carbon dioxide to be removed, right? And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body, right? So the जो ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा. लंग्स में क्यों चला जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स में भेज देगा और लंग्स से क्या क्या ले लेगा, वो ऑक्सीजन को ले लेगा. ठीक है ना? क्या लिखा है इन्होंने, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ताकि वो पूरी बॉडी में चला जाए ऑक्सीजन रिच ब्लड. क्लियर? Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart, the left atrium, right? So the left atrium, total we are having the 4 chambers in our human heart. So the oxygenated blood will comes into the left atrium. Clear? लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव करेगा. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा? वो रिलैक्स हो जाएगा जब इस ब्लड को वो कलेक्ट कर लेगा.
It then contracts while the next chamber, the left ventricle expands. फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर है कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एक्सपेंड हो जाएगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ताकि इसमें क्या जाएगा, वो ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था, फिर वो कहाँ चला गया, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। कौन सा ब्लड था वो, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स in its turn the blood is pumped out to the body, ठीक है। now the left ventricle contract, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो ब्लड है वो पंप्ड आउट हो जाएगा वहां से। क्लियर। देन व्हाट दे हैव रिटन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber of the right atrium as it is expands। तो इसका मतलब ये हुआ, जो राइट एट्रियम होगा वो क्या रिसीव कर रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव कर रहा है। राइट एट्रियम विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। देन एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, राइट। जो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर है कौन सा, राइट वेंट्रिकल, वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट। तो कहाँ चला गया वो ब्लड, राइट वेंट्रिकल में गया, विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। फिर वो कहाँ गया, वो लंग्स की तरफ गया। क्यों गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीजनेशन के लिए गया। क्लियर। सिंस द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर राइट वेंट्रिकल है, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करना पड़ेगा। कहाँ पर, अलग अलग ऑर्गन्स में। दे हैव थिकर वॉल्स, ठीक है। उनकी जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो थिकर मस्कुलर वॉल्स होंगी, ठीक है। थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। इट मीन्स एट्रिया हैज थिन वॉल एंड द वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स। क्लियर। वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो वॉल्व्स का क्या रोल होगा, जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, उसका बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो, ठीक है। चलिए, नाउ ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड इन द लंग्स। हाउ द ऑक्सीजन विल एंटर इन द लंग्स, राइट। सो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing, right? So there is a separation between the right side and the left side of the heart. दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। क्लियर। Such separation allows a highly efficient सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये ऐसा क्यों है यहाँ पर, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हाईली एफिशिएंट हो जाए। कहाँ पर, ठीक है, बॉडी के लिए। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। क्लियर। दिस इज यूजफुल in animals that have high energy needs such as birds and mammals। ये कहाँ यूजफुल होगा, उन एनिमल्स के लिए जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर
मेंटेन रख सके। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे, ठीक है, दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ के आसपास के एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, आपस के एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जैसे बहुत सारे एम्फीबियंस हैं या फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, उसमें हमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 3 चैम्बर्ड। फिशेज में भी होगा, फिशेज में क्या होगा, वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी किसके बीच में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड, ठीक है, फिशेज में क्या होगा, 2 चैम्बर्ड होगा, ठीक है, 2 चैम्बर्ड होगा। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इन ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्लड वो पास हो जाएगा। दस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। तो उसमें क्या होगा, 1 साइकिल चलेगी उसमें, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, राइट। सो अगर हम देखें जो हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा ट्वाइस, ये साइकिल कैसी होगी, 2 बार चलेगी, ठीक है, ईच साइकिल कैसी होगी, वो 2 बार चलेगी, किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हम उसके लिए क्या वर्ड आएगा यहाँ पर, डबल सर्कुलेशन, राइट। सो आई विल शो इन द डायग्राम, राइट, अबाउट द ह्यूमन हार्ट एज वेल एज द डबल सर्कुलेशन, राइट। तो अभी तक हमने इसमें ये डिस्कस करा कि भाई हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा आपका राइट एट्रियम में, और फिर वो कहाँ जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, वो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर उसके बाद में जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम क्या कैरी कर रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एरोटा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में डायग्राम से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है ना, और ह्यूमन हार्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर।